Success Mantra. We shape future. Hello students, so in this video session we are going to discuss one very important judgment of the Supreme Court, and the name of the judgment is Association for Democratic Reforms and Others versus Union of India. In this particular judgment, Supreme Court of India has declared the scheme of electoral bond as unconstitutional because this particular scheme was in the violation of Article 19 Clause 1 Subclause A. Now let's look into the various important aspects of this particular judgment. Let's start from that particular point when this scheme was introduced as a bill in the Parliament by Arun Jaitley. Now this particular scheme, the electoral bond scheme, was introduced in 2017 by the then Finance Minister Mr. Arun Jaitley. Now moving on. So these are the various aspects of this particular topic that we are going to cover under this particular under this topic. Now what are these important headings? So first of all, we'll start with the definition of electoral bond. Electoral bond are in the nature of promissory note and bearer instrument. Then we will see what is the meaning of promissory note and a bearer instrument, how electoral bond works, timeline of electoral bond scheme. Then we'll see a few important one-liners about the electoral bond scheme. Then we will see who can donate these electoral bonds and who can receive these electoral bonds. Now what are the various kind of challenges that were raised in the Supreme Court. Then we will see what was the response of Election Commission. Then we will see what was the response of Government of India. Then we will see what were the various kind of challenges that were faced by the Supreme Court. Then again we will see what was the subsequent development. Again we will see this particular judgment, what was the composition of the bench. Then we will see the petitioner argument, then government's response, and finally the court order. So these are the various headings which we are going to discuss under this particular topic. Now let's move on. Now let's understand the definition of electoral bond. What are these electoral bonds? क्या होते हैं ये electoral bond? किस काम में आते हैं electoral bond? So क्या से पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि किस काम आते हैं electoral bond. So electoral bond किस काम आते हैं? अगर कोई इंसान इंडिया में या कोई कॉरपोरेट कंपनी या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना चाहती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड इज दैट टूल जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट किसी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट. Bearer instrument are similar to promissory note. These are payable to the bearer on demand. So basically electoral bonds are bearer in nature. Now what is this mean? What is the meaning of bearer in nature or bearer on demand? That holder of the instrument, holder of that particular instrument is allowed to receive the payment. Now the donor can be a citizen of India or a body incorporated in India. So who can donate these electoral bonds? So any Indian citizen or any body that is incorporated in India or any company that is registered in India can donate these electoral bonds. Now moving on. These bonds are available in 5 denominations: 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. So basically ये जो electoral bond है ये 5 डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है. अब डिनोमिनेशंस का मतलब क्या है? जैसे हमारी नोट्स के डिनोमिनेशंस होते हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के डिनोमिनेशंस होते हैं. मिनिमम वैल्यू क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की? 1,000 रुपीज और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1 करोड़ रुपीज. 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़. आप 1,000 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक एक जीरो ऐड करते जाएंगे और 1 करोड़ जब तक आप नहीं पहुंच जाएंगे 1 करोड़ तक, तो तब तक आप एक एक जीरो ऐड करते जाएंगे. 5 डिनोमिनेशन से 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. Now let's understand what are these bearer instrument, because without understanding the meaning of bearer instrument we cannot understand what are these electoral bonds exhaustively. So let's understand what are these bearer instrument. Bearer instrument is a type of fixed income security in which no ownership information is recorded and the security is issued in the physical form to the purchaser. The holder of a bearer instrument is presumed to be the owner and whosoever is in the possession of the physical bond is entitled to the coupon payments. So basically these bearer instrument are a kind of coupon. These bearer instrument are a kind of coupon. अब बेसिकली कूपन्स के साथ में क्या होता है कि कूपन जिसके पास में होता है वही उस कूपन का ओनर होता है. सो बेसिकली अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बेयरर इंस्ट्रूमेंट अगर आप समझना चाहें बहुत कंसाइज और बहुत प्रिसाइज में, तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि एक ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होता है. मतलब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 10,000 रुपए का, उस पर कुछ नहीं लिखा होगा, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी कि कौन खरीद रहा है,
किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट किए जाएंगे, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन होती है बियरर इंस्ट्रूमेंट पे। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जिस किसी इंसान के पास या बॉडी के पास में वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा वही उसका ओनर होगा। आप फिर क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाएगा किसी भी अथॉरिटी के पास और उसको इन कैश करवा लेगा। अथॉरिटी उससे ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती है कि आप तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के ओनर नहीं हैं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा वही इसका एक्चुअल ओनर होगा। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट इज व्हाट इज अ नोट, एनीथिंग व्हिच इज इन राइटिंग इज कॉल्ड अ नोट। नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, एक ऐसा नोट जिसपे आप किसी तरीके का कोई प्रॉमिस करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया किसी एक्स पर्सन को और मैंने उस प्रॉमिसरी नोट में ये लिखा कि मैं आज के 2 हफ्ते बाद, आज से 2 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें इस स्पेसिफिक डेट को, दैट इज लेट्स अज्यूम 25th ऑफ अगस्त, मैं तुम्हें 25th ऑफ अगस्त को 20,000 रुपीज़ का पेमेंट करूंगा। मैं अगर उसे ऐसा इस नोट पे लिख करके दे देता हूं तो ये क्या होगा, अ प्रॉमिसरी नोट। मतलब प्रॉमिस है एक काइंड का कि अगर आप, मतलब एक प्रॉमिस है कि मैं आपको 25 तारीख को 20,000 रुपए दूंगा। यह है आपका प्रॉमिसरी नोट। और बियरर इंस्ट्रूमेंट में बस एक चीज याद रखिएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होता है वही उसका ओनर होता है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, बियरर इंस्ट्रूमेंट थे। बियरर इंस्ट्रूमेंट होने का फायदा क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी उसको इजीली जाकर के इन कैश करवा देगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करते हैं, हाउ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क्स। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करते हैं। एक बहुत छोटा सा और एक बहुत बेसिक सा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल टेक माई एग्जाम्पल। सपोज करिए अब हम सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के 5 डिनोमिनेशंस होते हैं। 1000 से स्टार्ट होकर के ये 1 करोड़ तक जाता है। अब मान लीजिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को 10,000 रुपीज का डोनेशन करना है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज अभय सिंह, सो आई एम द परचेजर। अभय इज द परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड मैं परचेज कहां से करूंगा, सो बेसिकली परचेज करना होगा मुझे एसबीआई की ऑथराइज ब्रांच से। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज ओनली ऑथराइज बैंक इन इंडिया टू सेल और टू सेल दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा इंडिया में कोई भी बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल नहीं कर सकती थी। अब कैसे होगा, अब मैं परचेजर हूं, मैं गया सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपीज का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अब 10,000 रुपीज का मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की एक मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब पार्टी को डोनेशन कैसे होगा, मैंने एसबीआई को 10,000 रुपीज दिया, एसबीआई ने मुझे इन रिटर्न क्या दिया, एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। अब आगे क्या होगा, मैं हर पार्टी का एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं इनको हम पार्टीज कह लेते हैं। सो इसको एक आप लव ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं कि इसमें एक परचेजर हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे आपका एसबीआई हो गया और यहाँ पे कौन हो गया, ट्रेजरर, और यहाँ पे परचेजर हो गया। सो आपको क्या करना होगा, परचेजर एसबीआई से बॉन्ड परचेज करेगा, परचेजर को बॉन्ड मिल गया, फिर परचेजर जो पार्टी का ट्रेजरर होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेजरर होता है, उस ट्रेजरर के पास जाकर के इस बॉन्ड को डिपॉजिट कर देगा। और अगर इन बॉन्ड्स को जो डेट ऑफ इशुएंस है, मान लीजिए डेट ऑफ इशुएंस है 1/1/2023, और अगर इस बॉन्ड को 15 जनवरी तक इन कैश नहीं करवाया गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा, और इसका जो फंड होगा, इसका जो अमाउंट होगा वो कहां चला जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में वो अमाउंट चला जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बस यही एक चीज है, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बार में खरीद लिया इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप एसबीआई के पास वापस जाकर के ये नहीं कह सकते कि आप अपना बॉन्ड रखिए, मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। एसबीआई आपसे क्या कहेगा कि मैंने आपको खरीदने के पहले ये चीज इन्फॉर्म की थी कि अगर आप एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेंगे तो दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 15 डेज के अंदर ये बॉन्ड खरीदने के 15 डेज के अंदर अगर इस बॉन्ड को इन कैश भी नहीं करवाया गया तब भी इस बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, आप अपने पास अपना बॉन्ड रखे रहिए। और अगर ट्रेजरर ने भी, पार्टी का जो ट्रेजरर होता है, सपोज करिए मैंने ये 10,000 रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर ने अगर 15 डेज के अंदर इस बॉन्ड को इन कैश नहीं करवाया तो इस बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो अमाउंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इंडिया में कब एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या टूल्स को अडॉप्ट किया गया इन बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो हम लोग 2016 से स्टार्ट करते हैं। 2016 से स्टार्ट करेंगे और 15 फरवरी 2024 पे खत्म करेंगे, क्योंकि 15 फरवरी 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 14 में 2016 फाइनेंस एक्ट 2016 इज इंट्रोड्यूस्ड। सो बेसिकली सबसे पहले 2016 में फाइनेंस एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक्ट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 FCRA 2010 में क्या किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया और फॉरेन सोर्स की जो डेफिनेशन थी उसे चेंज किया गया। एंड अंडर दिस द फॉरेन कंपनीज हु हैव अ मेजॉरिटी शेयर इन इंडियन कंपनीज टू डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो बाय मेकिंग दिस स्पेसिफिक अमेंडमेंट, FCRA में अमेंडमेंट करके हमने क्या किया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, जिनका इंडियन कंपनीज में जिन्होंने जो इंडियन कंपनीज में मेजर इन्वेस्टर हैं, वो कंपनीज भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस कर सकती हैं। फिर 1 फरवरी 2017 को क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अनाउंसेस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली ने, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इस स्पेसिफिक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2017 फाइनेंस एक्ट 2017 वाज इंट्रोड्यूस। 1 फरवरी 2017 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। अब इस पर्टिकुलर स्कीम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 31 मार्च 2017 को। अब जो ये फाइनेंस एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए डिफरेंट लॉज में। अब किस किस लॉ में चेंज किया गया, कौन कौन से वो लॉज थे जिनमें चेंज करना पड़ा, ताकि हम इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है इसे इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस कर सकें। तो 4 एक्ट थे, देयर आर 4 मेजर एक्ट जिनमें हमने चेंज किया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. These are the 4 major acts which were changed just to effectively implement the electoral bond scheme. Now subsequently on 2nd of January 2018, Union issues a notification to introduce the electoral bond scheme 2018. So the bill was brought on 1st February 2017 and this scheme was implemented on 2nd of January 2018. So एक साल के अंदर क्या हुआ, इस बिल को इंट्रोड्यूस करके उसे एक्ट बना करके 2 जनवरी से इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया गया। मतलब 22 ऑफ जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स, 22 ऑफ जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स जो लोग भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस करना चाहते हैं, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज करना होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गई तो फिर उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसे थे जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि ये पर्टिकुलर स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इलीगल है या इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। सो वो सारी पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया था। इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू सबमिट डोनेशन डिटेल टू द ईसी इन अ सील्ड कवर। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने 12 अप्रैल 2019 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस एक्सेप्ट किए हैं, वो सारा का सारा डिटेल रिवील करेंगी। फिर 15 फरवरी 2024 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को यूनैनिमसली स्ट्रक डाउन किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इंडिया में इलेक्शंस फरवरी में अनाउंस किए गए थे, 16 मार्च 2024 को इलेक्शंस अनाउंस किए गए थे और फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अंडर द 2018 स्कीम सर्टेन ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर ऑथराइज्ड टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट ओनली देयर वर फ्यू ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया which can sell these electoral bonds. They would be sold for 10 days in January, April, July and October each year. So basically हर दिन, हर साल, मतलब every year ये पर्टिकुलर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये सिर्फ 10 डेज के लिए बिकते थे। जनवरी में फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता था जनवरी से, तो जनवरी में 10 दिन, फिर अप्रैल में 10 दिन, फिर जुलाई में 10 दिन, फिर अक्टूबर में 10 दिन। द आइडेंटिटी ऑफ द परचेजर रिमेन्स अनोनिमस टू एवरीवन एक्सेप्ट द एसबीआई हु मस्ट रिकॉर्ड द बायर्स नो योर कस्टमर डिटेल्स। सो बेसिकली एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इन इंडिया कैन नो अबाउट द परचेजर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जब परचेजर जाता था इस बॉन्ड को खरीदने के लिए तो सिर्फ उसी के पास क्या रहता था,
बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पता चल पाता था कि किसने हमसे बॉन्ड खरीदा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभय सिंह है, मैंने 10,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000 रुपीज़ का इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीदा, तो मेरे अलावा तो किसी एसबीआई के अलावा तो किसी को पता चल नहीं पाएगा कि मैंने कितने का बॉन्ड खरीदा है, कौन सा बॉन्ड खरीदा है। मेरे एक एसबीआई को पता चल पाएगा और दूसरा ट्रेजरर को पता चल पाएगा जिसके पास आप ये बॉन्ड डिपॉजिट करेंगे। देयर वुड बी एन अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑन एवरी इलेक्टोरल बॉन्ड। अब हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता था। अब उस अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या होता है कि कुछ डिजिट्स रहेंगी, कुछ नंबर्स रहेंगे। जैसे आपके नोट में जो सीरियल नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, इट इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड। ऐसा ही एक अल्फा न्यूमेरिक कोड हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे था। The political parties must encash the bond within 15 days of receiving it. After this period ends, the funds are deposited to the Prime Minister's Relief Fund. और जब देखिए बॉन्ड को 15 डेज के अंदर इनकैश करवाना होता था रिसीव करने के बाद, अगर आपने 15 डेज के अंदर बॉन्ड इनकैश नहीं करवाया तो जो उस बॉन्ड का, जैसे सपोज करिए मैंने 10,000 का बॉन्ड था, ट्रेजरर के पास डिपॉजिट किया, ट्रेजरर ने 15 डेज के अंदर इनकैश नहीं करवाया, तो जो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वुड बी इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन फंडिंग। मतलब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाह रहे हैं तो आप कितनी भी फंडिंग कर सकते हैं, इस पर कोई भी किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको 1,000 करोड़ रुपए का भी डोनेशन करना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो 1,000 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्टमेंट डोनेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जा रही हैं। अब ये क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले तो हम डोनर और डोनी के बारे में देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोनर एंड डोनी। सो डोनर मतलब होता है जो डोनेट करता है और डोनी का मतलब होता है जो डोनेशंस को एक्सेप्ट करता है। सो कौन डोनेट कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड्स। सिटीजन कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स इधर सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। सो नाउ अब कौन कौन खरीद सकता है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस या जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है, वो कंपनीज और इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। सिटीजन कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स इधर सिंगली और, अब इंडिविजुअल्स अगर चाहें, जैसे मैं चाहूं तो सिंगल हैंडली भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता हूं और हम 4-5 लोग मिलकर भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, सिर्फ यही दो लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। अब कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस को रिसीव कर सकती हैं। बहुत कम नंबर है उन पार्टीज का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग रिसीव कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया में 1400 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट सिर्फ कुछ ही पार्टीज ऐसी हैं जो डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकती हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, The only political parties eligible to receive electoral bonds are those that are registered under Section 29A of the Representation of the Peoples Act 1951 and that received at least 1% of the votes cast in the most recent general election for the state's legislative assembly or House of Representatives. So basically आप लोग याद रखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकती हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं या जो लास्ट जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें अगर पार्टी को मिनिमम 1% वोट सिक्योर किया है, तभी जाकर के वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से थ्रू डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए लास्ट जनरल इलेक्शंस में एक पार्टी है एक्स, अब टोटल वोट लास्ट जनरल इलेक्शंस में 64 करोड़ के आसपास कास्ट किए गए। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 64 लाख वोट मिलते हैं, हमने टोटल वोट 64 करोड़ पड़े, उसका 1% कितना हुआ 64 लाख। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 64 लाख वोट मिले हैं और वो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। Now, shortly after the amendment were introduced in September 2017 and January 2018, two NGOs, Association for Democratic Reforms and Common Cause, filed petitions in the Supreme Court challenging the amendment. So basically 2018 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, इफेक्ट में आ गई थी, इंप्लीमेंट हो गई थी, और जैसे ही इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया उसके तुरंत बाद इंडिया से 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी, एनजीओज, एक तो है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और दूसरी थी आपकी कॉमन कॉज। इन दोनों ही इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एनजीओज ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये वैलिड नहीं है। एट द आउटसेट द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द फाइनेंस एक्ट्स वर wrongfully passed as money bills to prevent higher scrutiny by the Rajya Sabha. Now the basic point which was raised by these petitioners in the Supreme Court, that these bills were introduced as money bill.
ये फाइनेंस एक्ट 2017 जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। और मनी बिल के साथ में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, राज्यसभा इज पावरलेस। राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा के पास पावर होता है। सो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज ने यही क्लेम किया कि राज्यसभा का जो पावर है उसको बाईपास करने के लिए इसे एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑन 25th of March 2019 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन वन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स फाइल्ड एन एफिडेविट अपोजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि आपने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है, आपका क्या स्टैंड है। सो ऑन 25th of March 2019 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेटेड दैट वी आर अपोजिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम. This particular scheme is not good for Indian democracy. The affidavit claimed that the scheme is contrary to the goal of the transparency in political finance. It also claimed that ECI had shared a letter to the Union government on 26th of May 2017 warning against the repercussions impact on the transparency aspect of political finance funding. So basically Election Commission of India ने बोला जब अपना 25 मार्च 2019 को एफिडेविट फाइल किया, तो उस एफिडेविट में ये बोला कि हम लोगों ने 26 मई 2017 को ही गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के बहुत बुरे रिपरकशंस होंगे। पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे नहीं होगी, एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए। हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि कोई भी इंसान जाकर के एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगा, फिर ट्रेजरर के पास जाकर के उसे जमा कर देगा। अब ट्रेजरर के पास जब आप जमा करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रेजरर जाकर के नहीं बताएगा पॉलिटिकल या पार्टी हेड को कि इस पर्टिकुलर आदमी ने 100 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है, तो इन पे हम इस तरीके के फेवर कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब भी हम बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा लैटिन मैक्सिम है जिसे आप याद रखेंगे, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। मतलब आप मुझे चंदा दीजिए, मैं उसके बदले में आपको कुछ और दूंगा। सो दिस वाज द ट्रांजैक्शन, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। फर्दर दे सबमिटेड दैट एग्जेम्प्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम शेयरिंग डिटेल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स वुड कीप इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन फंडिंग इन द डार्क। सो बेसिकली एफसीआरए में 2016 में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट में चेंज करके क्या किया गया था कि फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया गया था फंडिंग करने के लिए। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही बोला कि अगर आप डोनर्स की लिस्ट को कभी रिवील नहीं करेंगे तो जो ये फॉरेन फंडिंग हो रही है इसके बारे में तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। मूविंग ऑन, On 1 April 2019, the Union government submitted a rejoinder claiming that EBS was a pioneer step in bringing electoral reforms. अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये पूरे पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट और पॉलिटिकल जो ये पार्टीज हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट पॉलिटिकल पार्टीज लार्जली रिसीव फंड थ्रू कैश डोनेशंस लीडिंग टू एन अनरेगुलेटेड फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। नो, द यूनियन गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट बिफोर दिस पर्टिकुलर स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पॉलिटिकल डोनेशंस आर मेड इन कैश के थ्रू पॉलिटिकल डोनेशंस को किया जाता था। और उससे क्या होता, जब कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इस चीज़ को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। The union assured that these issues would no longer hamper political funding because there is only one authorized bank, the State Bank of India, that can issue such bonds. अब देखिए यहाँ पे जो आपका यूनियन गवर्नमेंट था उनका ये कहना था कि लॉन्ग रन में दिस पर्टिकुलर स्कीम विल डेफिनेटली वर्क। इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी ऑथराइज बैंक है जो इस बॉन्ड्स को इशू कर सकती है और वो बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑन 12 अप्रैल 2019 a bench led by Chief Justice of India Ranjan Gogoi with Justices Deepak Gupta and Rajiv Khanna directed all political parties to submit details of donations, donors and bank account numbers in a sealed cover to the Election Commission of India. Now remember this date, 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया था जो पिटिशन फाइल की थी किसने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज ने। उस पिटिशन में एक इंटरिम ऑर्डर आया और उस इंटरिम ऑर्डर में क्या बोला गया कि 12 अप्रैल 2019 तक जितने लोगों ने पॉलिटिकल फंडिंग की है उन सभी लोगों का नाम एक सील कवर में करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। संजीव डायरेक्टेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सबमिट द बैंक अकाउंट नंबर्स to submit details of donations and bank to all political party account numbers in a sealed cover to the Election Commission of India. The bench refrained from imposing a stay on the implementation of the scheme, stating that such weighty issues would require an in-depth hearing. So basically 2019 में 12 अप्रैल 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अभी इस पर्टिकुलर स्कीम पे स्टे नहीं लगा सकते। रीजन क्या है कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर्टिकुलर स्कीम पे स्टे लगाने के लिए हमें अभी थोड़ा सा और टाइम और इन डेप्थ स्टडी करना होगा।
Now, following this order, the petitioner approached the court on multiple occasions. An application for an urgent hearing was filed in November 2019, then again in October 20 before the Bihar elections. अब 2019 में जब इंटरिम ऑर्डर आ गया, तो इंटरिम ऑर्डर आने के बाद कई बार इंडिया में बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अलग अलग टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया कि इस पर्टिकुलर स्कीम को हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन पिटिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया. अब देखिए 2023 में एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई. On 16th October 2023, the petitioner approached the court during mentioning to hear the case prior to the 2024 general elections. A bench led by CJI D.Y. Chandrachud with Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra referred, noting the importance of the issue, referred the case to a 5-judge constitution bench. अब 16th October 2023 को वापस से petitioner सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने ये बोला कि 2024 में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उन जनरल इलेक्शंस के पहले इस पिटिशन को हमें हियर करना चाहिए और इस पिटिशन को आपको लिस्ट करना चाहिए. और इसके पीछे का रीजन क्या है कि 2024 में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके पहले हमें इस पर्टिकुलर पिटिशन को आपको लिस्ट करना होगा. फिर क्या हुआ, 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया लिस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर पिटिशन को 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर किया गया. ऑन 30th October 2023 अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 16th अक्टूबर को कोर्ट ने डिसाइड किया कि 5 जजेस बेंच को ये केस ट्रांसफर किया जाएगा. और 31 अक्टूबर को क्या हुआ, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया. अब उस बेंच में था कौन कौन, CJI D.Y. चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस J.B. पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. दीज वर द 5 जस्टिसेस इन दैट पर्टिकुलर बेंच. कौन कौन, CJI D.Y. चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस J.B. पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. This was the constitution of the bench. Dr. D.Y. Chandrachud, Justice B.R. Gawai, Justice J.B. Pardiwala, Justice Manoj Mishra, and Sanjeev Khanna, Justice Sanjeev Khanna. Now, please remember the name of Justice Sanjeev Khanna. Why you have to remember the name of Justice Sanjeev Khanna? The only reason is that Mr. Khanna has given the concurring opinion. Now, let's understand this. Suppose this is this electoral bond scheme. Electoral bond scheme was declared unconstitutional. Now, remember this. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अब देखिए कि ये जो 4 जजेस थे, इन्होंने एक सिमिलर ओपिनियन दिया था, और वो जजेस कौन कौन थे जिनका कॉमन ओपिनियन था, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस B.R. पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. इनका कॉमन ओपिनियन था, एक सिमिलर ओपिनियन था. और जस्टिस खन्ना जो थे, इनका क्या था, कंकरिंग ओपिनियन था. बट कंकरिंग ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ओपिनियन डिफरेंट होना. ओपिनियन डिफरेंट था, रीजनिंग डिफरेंट था. इनका जस्टिस संजीव खन्ना का जो रीजनिंग था वो डिफरेंट था, बट एंड ऑफ द डे इन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. याद रखिएगा, दिस पर्टिकुलर जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय अ 5 जजेस बेंच. यूनानिमस जजमेंट था. 5-0 से क्या किया गया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. 5 जजेस इस फेवर में थे कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए. एक ही जज ऐसे थे जिनका कंकरिंग ओपिनियन था. कंकरिंग ओपिनियन का मतलब क्या है, जजमेंट सेम है बट ओपिनियन डिफरेंट है. जस्टिस का नाम क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट क्या थे कोर्ट में. पिटिशनर मतलब ये जो एनजीओ थे, उनका क्या आर्ग्यूमेंट था. पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट फंडिंग, ब्लैक मनी सर्कुलेशन एंड करप्शन. They argued that voters have a right to information about political parties' sources of funding as it informs the policies and views of the party. So basically, the petitioner has raised two objections, and what are those objections? That the electoral bond scheme increased corporate funding. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया. ब्लैक मनी का सर्कुलेशन जो था वो बढ़ गया, वापस से करप्शन बढ़ गया. और इलेक्टोरल बॉन्ड की जब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो पार्लियामेंट ने यही बोला था कि ये पर्टिकुलर स्कीम ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के लिए आई है. बट पिटिशनर्स ने ये पॉइंट प्रूफ किया कोर्ट में कि इस पर्टिकुलर स्कीम के आने के बाद से कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा सेट अवेलेबल नहीं है जो ये चीज प्रूफ कर सके कि जो ब्लैक मनी था, उसकी जो ब्लैक मनी से जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी उसमें किसी भी तरीके का निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है. और इन्होंने दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने रेज किया पिटिशनर्स ने, उन्होंने ये बोला कि किसी भी डेमोक्रेसी में, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, एट द एंड ऑफ द डे वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि उनके वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, उनकी फंडिंग जो आ रही है उनके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. तभी जाकर के उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एकदम कंप्लीटली पता चल पाएगा कि वो लोग कैसे काम करते हैं. अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था. द यूनियन कंटेंडेड दैट द स्कीम वर डिजाइन्ड टू गारंटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द राइट टू privacy of the donors who were otherwise exposed to retribution from political parties that they didn't fund. Now the most
This was a funny argument. I must say this was a funny argument by the union government. Basically, they have stated that we have promised the donors that their identity will be not revealed. हम उनके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, और अगर हम उनके आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको उन्होंने डोनेशन नहीं दिया है, तो उनकी तरफ से उन्हें क्या पड़ेगा, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर क्या आया? अब कोर्ट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 2 नवंबर 2023 द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिजर्व द जजमेंट। देखिए 31 अक्टूबर को 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, 3 डेज तक लगातार कॉन्टिन्यूअस हियरिंग हुई, और 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया। ऑन 15 फरवरी 2024 द कोर्ट यूनानिमसली स्ट्रक डाउन द यूनियंस 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। नाउ द जजमेंट वाज रिजर्व्ड ऑन 2 नवंबर 2023 which was declared on 15th February 2024, and in its judgment the Supreme Court has declared this particular scheme, the scheme of electoral bond, as unconstitutional. Why? Because this particular scheme was violating the fundamental rights of the voters, that they should know the source of the funding. They should know the source of the funding. So that's why this particular scheme was declared unconstitutional for violating Article 19 Clause 1 Subclause A. Article 19 Clause 1 Subclause A of the Indian Constitution. The bench held that the scheme violated the voters' right to information enshrined in Article 19 Clause 1 Subclause A of the Constitution. The court also directed that the sale of the electoral bonds be stopped with immediate effect. SBI was directed to submit details of the electoral bonds purchased from 12 April 2019 till date to the ECI. Now this was the most important observation made by the Supreme Court, that Supreme Court has asked the State Bank of India that it has to produce all the information, all list of all the donors, the number of bonds, the amount of bonds. So ये सारा डेटा SBI को वापस करना है, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस डेटा को देना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पे इस पूरे डेटा को अपलोड करेगा, ताकि कोई भी इंडियन जो इन डोनेशंस के बारे में जानना चाहता है वो इजीली इस चीज को समझ सके। याद रखिएगा 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 के बीच में जितने लोगों ने पॉलिटिकल फंडिंग की थी उन सभी लोगों का नाम रिवील किया जाएगा। अब 12 अप्रैल 2019 कट ऑफ डेट क्यों है? क्योंकि 12 अप्रैल 2019 को जो पहला पिटिशन फाइल हुआ था उस पर एक इंटरिम ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। नाउ दिस विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द परचेजर एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टीज दैट द बॉन्ड्स वर गिवन टू। अब बेसिकली क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में यह भी डिक्लेयर किया गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग दिया गया है वो भी आपको रिवील करना होगा। अगेन इसके अलावा इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। कोर्ट का क्या ऑर्डर था, गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर था, स्कीम 2016 से हमने स्टार्ट किया था, FCRA में चेंज किया, फिर 2017 में 4 डिफरेंट स्टैट्यूट्स में हमने चेंज किया, फिर 2018 में 2 जनवरी को स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया, फिर उसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी ADR और कॉमन कॉज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन फाइल किया, फिर 12 अप्रैल 2019 को इंटरिम ऑर्डर आया, फिर 12 अप्रैल 2019 को जब इंटरिम ऑर्डर आया तो सारे ही डोनर्स का जो डेटा था वो एक सील्ड कवर में डिमांड किया गया। फिर उसके बाद एक अलग से 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से पिटिशन फाइल किया गया और बोला गया कि 2024 के इलेक्शंस के पहले इस मैटर को लिस्ट किया जाए क्योंकि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच को ट्रांसफर किया, 31 अक्टूबर को बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, 2 नवंबर 2023 को जजमेंट रिजर्व किया गया, 15 फरवरी 2024 को जजमेंट डिलीवर किया गया और इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसके साथ हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस जजमेंट। जो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी हमने उन सारी ही चीज़ों को कवर कर लिया है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पंच इन कर सकते हैं, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। सो विद दिस वी विल रैप अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video, also subscribe to our digital Success Mantra Digital, and thank you so much for watching this particular video.